So we did this chapter, right? This was Yeah. about the heating and magnetic effects, right? Magnetic effects and heating effects of Hmm. electric current. Okay. We have to do the exercise. How is the resistance offered by a wire to the flow of electric current related to the heat generated in the wire? What will we say? The higher the resistance, the higher the heat generated inside the wire. To the flow of electric current. Yeah. Anything more specific? Here is a wire, AB. Hmm. Right? Hmm. Let us say I current is going through it, right? I current, I amperes. For example, let's say 1 ampere or 2 ampere or 3 ampere, right? And then resistance of this wire, it is R ohms. What is the symbol for ohms? Like this. That bulb type. Okay, right? Hmm. Then how much is the heat generated in this wire? This wire I will. square R. The heat generated is how much? I square R I square R. per second. Yeah, Joule per joule second. per second. We call joule per second as watt. So this is basically the heat power dissipated. Power is joule by second unit, right? So how the two related? If the current doubles, you said correctly that if the current increases, the heat will increase. But if the current doubles, the heat will become how much? I square R joule per second. Yeah, but then if the current doubles, heat generated becomes 2 times. 4 times. No? Suppose heat Uh-huh. generated was H, it was I square R. Hmm. Now, what is the new H new? 2I square R. Yeah, it is 2I whole square into R, which is like 4 4I square square R. R. So what does it mean? It means H nu is equal to 4 times H, because I square R was nothing but Hmm. H, right? Or we can divide this two, H nu by H. ऐसे भी कर सकते हैं. H nu by H will be 4I 4I square R square divided upon by. I square R. So I square R cut, Hmm. and you get 4. So it becomes 4 times. It becomes 4 times. Right? Hmm. If the current become 3 times, current heat per second. If the current is I, let us say heat is Hmm. H. If the current is 2I, how much is the heat? 2I square R. Current डबल तो हीट कितनी हो, पहले H थी अब कितनी हो जाएगी? H new. 4H. Right. If it become 3I, Hmm. it So becomes 16H. no 8. 3I. 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो it becomes 9H. 9H. If it become 4I, it It will becomes. become 16H. If it becomes I by 2, हाफ हो जाती है अगर, तो हाइट कितनी हो जाएगी पर सेकेंड?
0.5h. नो, I/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? I² / 4R। आ रही है बात समझ में? तो कितना हो गया? 1/4 of h. So it becomes h/4. It becomes h/4. h/4. Are you getting me? Is it fine? It is an important skill. It is required not just in this question. You will require it right through your education, right? Finding the ratios. If one thing doubles, if it's a square relation, then the other thing becomes 4 times, 3 times, 9 times, like that, right? Square roots. Squares and square roots. Yeah, square then square root. Yeah, that is the meaning of it, right? Right. If I becomes I/3, then how much becomes h? Mm, h/9. H/9. Ah, you got it right. You got it. That is a square relationship, right? Mm. How is the lighting effect of electric current related to the heating effect? Light is generated when heat is produced. Lighting effect relation with Heating effect. heating effect. क्या relation है? When there is enough heat, the wire starts glowing. As the wire, as the wire Gains heat. gains heat, very good. It Then what starts happened? glowing. ऐसे कैसे? What happens to it as the wire gains heat? It becomes hot. Its temperature increases, right? Hmm. Heat temperature Increases increases, right? upon a certain temperature, it starts glowing. Yeah, when the temperature is above a certain temperature, the wire Starts glowing. This is starts called the lighting effect. glowing, glowing, right? This is called the lighting effect. Yeah, this glow is the light. This glow is the light. No? This glow is the light. Is it a good answer? Hmm. Lighting effect relation with heating effect. So can we make it in flowchart? Hmm. Uh, Wire, heat, wire, इसमें हम क्या डाल रहे हैं? heat. इसमें हम डाल रहे हैं करंट, राइट? राइट? Hmm. And wire has resistance. So it becomes, Hot. yeah, heat. तो क्या मिल जाएगा हमें? Temperature increases. Temperature increases. Temperature above glow So temperature, gluten. right? Hmm. Wire glows. Room fills with light. Nice. Hmm. We can say like this, right? So you already write very well. You write very well. Your answers are pretty good. I was quite impressed with the quality of answer. Yeah. Very crisp and try to retain it. It's not easy to retain it, right? As you grow, you can become more confused. Yeah. So that simplicity, that's not easy to retain. Yeah. Like yesterday, I think when we told about the direction of current, you said clockwise, the field will be this way, right? Hmm. Yeah. I asked the same question to class 12 guys. They take so much time to tell it, right? They are not so sure.
So I see, this is for true for you, this is true for many, younger kids. They answer quite confidently and, spontaneously. But as they grow up, somewhere I think the load of studies or, whatever, it takes its toll. It takes its toll, right? And the simplicity goes away. The fun of learning, that loses. Yeah. But that's very sad actually. I always say, I enjoy teaching younger kids more, right? Older kids are very difficult, because they have so many things going on in their mind. They have so much syllabus, exams, right? Yeah. Some of them really enjoy, not all. Not all are like that. But many of them are too much stressed, right? That's very sad. Energy in which form is converted into electrical energy? E- Energy The in which form? voltage, Energy? chemical energy. Chemical energy. Chemical energy. And that converts into electrical energy. Very good. Hmm. Let us make sure that we understand these things. Now, do we really know it? Let's make sure. Let's read. An electric current flowing through a conductor can produce different effects such as heating effect, lighting effect, magnetic effect, and chemical effect. An electric current flowing in a wire And what produces is a the chemical? No, wait, wait, wait. You know about heating effect? Hmm. You know about lighting effect? Yes. You know about magnetic effect? Yes. Do you know about the chemical effect of current? We have not discussed. I don't think we have discussed. चैप्टर का नाम ही हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट है. चैप्टर का नाम ही हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट है. तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हमने डिस्कस नहीं किया है. नहीं किया है. तो ये हमें करना बाकी है. वी डोंट नो दिस, राइट? Hmm. An ओके, आगे बढ़े. electric हाँ, An electric current flowing in a wire produces a magnetic field around the wire. This is known as the magnetic effect of electric current. ठीक बात है. Hmm. राइट. An electric current flowing in the wire produces a magnetic field around the wire. This is known as the magnetic effect of current. मैंने आपको बोला था इसका एक और एस्पेक्ट भी है मैग्नेटिक इफेक्ट का. वो क्या? Magnetic effect. दो पार्ट है इसका, मैंने कहा था आपसे. एक बात तो ये सही हो गई कि मैं वायर हूं, मेरे में करंट है, तो मैं अपने अराउंड फील्ड बनाऊंगी. और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाएगा तो क्या होगा? वो मैं अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे. उसको मैं अट्रैक्ट या रिपेल करूंगी. मगर मेरे साथ क्या होगा? सब मैं ही करूंगी क्या? मुझे कुछ नहीं नहीं. होगा. क्यों? अगर अगर कोई और वायर होगी जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उससे भी अट्रैक्ट और रिपेल होएगा. वो भी हो सकता है. तो मैं वायर हूं, अगर एक और वायर है तो मैं उसको अट्रैक्ट या रिपेल करूंगी, लेकिन मैं भी अट्रैक्ट या रिपेल होंगी. हम्म. और अगर कोई दूसरा मैग्नेट है पास में, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड से असर डाला, उसको अट्रैक्ट या रिपेल किया, तो तो वो भी मैं मेरे भी, ऊपर असर डाल. हाँ, वो भी मुझे अगर वो अट्रैक्ट. पावरफुल होगा ज्यादा. ज्यादा पावरफुल वगैरह की बात ही नहीं है. मोशन में हमने फोर्सेस के बारे में क्या कहा था? फोर्सेस कैसे होते हैं? टिट फॉर ऑपोजिट टैट. इक्वल टिट फॉर टैट. इक्वल एंड अपोजिट. तो अगर मैंने उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स, तो वो मुझ पे क्या लगाएगा? 10 न्यूटन फोर्स लगेगा. कैसा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव. वो क्यों भाई? मैं तो उसको रिपेल कर, आई डोंट लाइक टू गो अवे, तो वो क्या कहेगा? ओ नो नो नो, आई लव यू, प्लीज कम टू मी, ऐसा कहेगा क्या? क्या बोलेगा वो? ओ गो टू हेल. यू आर नहीं. रिपेलिंग मी, आई ऑल्सो रिपेल यू. यू सी दैट? हम्म. What will happen? If a magnet repels another magnet, if a magnet A repels B, what will B do to A? इट विल आल्सो रिपेल ए. It will also repel A by the same force. You repelled by 10 Newton, he will also repel you by 10 Newton. You attract by 10 Newton, that will also attract by 10 Newton. It is not dependent on who is strong and who is weak. Even if you are weak and he is strong, the force will still be सेम. same. See the amazing nature, right? Whether you are weak or strong, the force is same. Force is same, right? Force is same, right?
बढ़िया बात है, राइट। हम्म हाँ, असर अलग अलग हो सकता है। सेम फोर्स, सिंस यू आर वीक, दैट फोर्स इज टू मच फॉर यू, राइट। एंड ही इज ए स्ट्रांग फेलो, उसको हो सकता है उस फोर्स से ना फर्क पड़े। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। yes So that is one more aspect of this, right, which has not been highlighted in this chapter, right? Hmm. The force on the wire, right? Okay, आगे बढ़े। An electromagnet is a temporary magnet made by winding a coil of wire around a piece of iron or another magnetic material and passing an electric current through the wire. It produces a magnetic field only when the current flows through the wire. It produces a magnetic field only when the current flows through the wire. This is good, right? What can be the other material? Other magnetic material is saying. Hmm. Uh, an el- uh, a wire through which current is being passed. हाँ, नहीं नहीं नहीं, when winding a coil around a piece of iron, you are winding a coil around a piece of iron, ऐसा बनाया था ना, जैसे आपने कील पे लपेटा था, हाँ. है ना, Hmm. ऐसे लपेटा था। तो दिस इज द वायर, इट इज द कॉयल, राइट। एंड दिस इज, नीचे रेड वाला क्या है, इट इज दी, Core. हाँ, कोर, पीस ऑफ आयरन। इस पीस ऑफ आयरन को क्या कहते हैं? Core. कोर, वेरी नाइसली सेट। दिस इज कॉल्ड कोर। तो वो कह रहा है इट कैन बी पीस ऑफ आयरन और इट कुड बी अनदर मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल कौन है अदर देन दी पीस ऑफ आयरन? Nickel and cobalt. या निकल एंड कोबाल्ट, निकल And एंड कोबाल्ट, steel also. या स्टील ऑल्सो, या। और हमने क्या देखा था, आजकल कुछ नए मटेरियल भी चल पड़े हैं, रेयर अर्थ मटेरियल जो हैं। हाँ. Neodymium. हाँ, अरे वेरी गुड, यू आर गुड, शार्प मेमोरी। Neodymium, some other materials, they are very costly, but nowadays they can produce very, very strong magnet, right? They can produce very strong magnet, they can produce very strong magnet। बढ़िया बात है, राइट। हम्म. और एक चीज और भी बताई थी हमने, कि कई बार हमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं चाहिए होती, नहीं चाहिए होते. तब हम किस चीज की कोर बनाते हैं, याद है? किताब में दिया, एनसीईआरटी में। किस चीज की को. तब सिर्फ कार्डबोर्ड से उन्होंने रोल बना दिया था हाँ. और अंदर खाली छोड़ दिया था। हम्म. तो वो किस, क्या कोर कहेंगे उसको हम? उसका एयर कोर. हाँ, एयर कोर। ये भी बड़ी काम की चीज होती है जी। इससे मैग्नेट स्ट्रांग नहीं होता। मगर हमेशा स्ट्रांग अच्छा होता है क्या? नहीं. जो काम कहते हैं ना, सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। सुई तो हम्म. छोटी सी होती है, मगर वो कितना इंपॉर्टेंट काम करती है, हैं? हम्म. तो जहां पर हमें वीक फील्ड चाहिए वहां पर स्ट्रांग फील्ड से बात नहीं बनेगी, जहां पर स्ट्रांग फील्ड चाहिए वहां पर वीक से बात नहीं बनेगी। तो सब चीजों की अपनी अपनी यूटिलिटी है। तो हमेशा हमें कोर चाहिए, मैग्नेटिक से कोर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखो, कोर अपने साथ मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। सुन रहे हो ध्यान से? हम्म. कोर अपने साथ मैग्नेट की स्ट्रेंथ तो बढ़ाती है, मगर हर चीज के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, ये तो हम्म. देखा होगा ना आपने। प्रोज एंड कॉन्स. प्रॉस एंड कॉन्स, वेरी गुड। हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर मटेरियल डालेंगे उसके भी कुछ प्रोज एंड प्रॉस कॉन्स. तो हैं भाई, चलो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, मगर उसके कुछ कॉन्स भी हैं, उसके कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करना आसान नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कोर, एयर कोर वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमने बात की थी ना कि जो इस वायर में करंट कैसा होता है जी, कैसा होता है? अगर मैं इसको बिजली से, अपने घर की बिजली से करंट दूं इसको, तो कैसा करंट आएगा इसके अंदर? ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब जब ये करंट ऐसा था तो यहाँ नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था। हम्म. मगर जब 1 सेकंड में 100 बार चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके 50 बाद पर. वो ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर में करंट। तब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। बता रहे बात? हम्म. तो मैग्नेट की पोलैरिटी बार बार बदल रही है, मैग्नेट की पोलैरिटी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार बदल बदल रही है. रही है। कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है हमें बदलने की।
हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है, राइट? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर, अरे वेरी गुड, ट्रांसफार्मर में काम आती है। ट्रांसफार्मर में क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आसानी से बार बार बदल जाए, आसानी से बार 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 बदलते बार हैं। बदल जाए, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम चाहते हैं, राइट? मगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी चाहते हैं, खासतौर से बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जिनमें बहुत हैवी करंट है, लेकिन जिनमें बहुत छोटा करंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो होते हैं, जो जैसे सेल फोन वगैरह में क्या होता है, करंट तो बहुत छोटा सा होता है, हम्म। मगर सिग्नल होता है, फास्ट सिग्नल होता है। तो हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वी हो तो वीक, मगर बहुत जल्दी जल्दी बदल सके। वीक तो हो मगर बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्शन बदल सके। चेंज कर सके। अब मुझे बताओ, कोई हाथी बार बार जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज कर सकता है? नहीं, वो तो बहुत भारी है। हम्म। तो बहुत भारी मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, आयरन वगैरह, तो उसके रीजंस हैं। मैंने तो हाथी तो एग्जांपल के लिए दे दिया, राइट? हम्म। हाँ, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स करना आसान नहीं नहीं होता। होता। लेकिन एयर वाले जो लाइट कोर वाले मटेरियल है, उससे मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करना बहुत हाई बहुत स्पीड इजी पे, होता है। हाँ इजीली हो जाता है, हाई स्पीड पे भी बहुत इजीली हो जाता है। आई बात समझ में? तो उसकी अपनी यूटिलिटी है भाई, उसकी अपनी यूटिलिटी है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉइल के अंदर हम मैग्नेटिक मटेरियल ही डालेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल डालेंगे। मैंने आपको थोड़ा बता दिया, राइट? क्योंकि बात हो रही थी इसलिए मैंने बता दिया, राइट? बाकी जो हम्म। आपके बुक में लिखा है वो ठीक है, मतलब क्लास 8 के हिसाब से ये ठीक है मैग्नेट के बारे में सीखने के लिए, बढ़िया बात है। लेकिन आजकल थोड़ी बदल गई है, किताबों का स्टाइल पुराना चल रहा है। अब तो सब लोग सेलफोन यूज करते हैं, सब लोग टीवी देखते हैं, सब चीजें हैं, राइट? तो दे विल बी इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स ऑल्सो, राइट? नॉट जस्ट द हीटर एंड द गीजर एंड you know those things, right? Huh? Right. Okay, good. We have discussed these first 3 points nicely, right? What about the fourth point? The polarity of an electromagnet depends on the direction of the current flowing through it. The We just strength of discussed it, right? hmm, We just discussed it, right? Okay, next point. the strength of the magnetic field produced by an electromagnet depends on the number Ah, of turns of wire on the strength and on the strength of the current flowing through it. right. It depends on the Number of coils and the strength of current. 3 चीजों पे डिपेंड करती है ये। देखो जी, ये हमारा कोई, इसमें बीच में मैंने आयरन की कोर डाल दी, चलो। वेट, ये क्या, आयरन की कोर डाल दी, राइट? Hmm. अब मैंने इसके ऊपर ऐसे रैप कर दी वायर, राइट? Hmm. समझ में आ रहा है ना? Huh. मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या देते हैं, याद है आपको? मैंने बताया था आपको Magnetic field is सिंबल। B. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ चलो हमने बैटरी लगा दी ऐसे, राइट? Hmm. में आई करंट जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, इस समय कैसे बनाया हमने यहाँ से? बताओ, नॉर्थ पोल किस तरफ, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? Left. नॉर्थ पोल Left. लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, राइट? Hmm. या यू आर राइट। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो कोई, अगर मैं मैग्नेट रख दूं, कितनी जोर से रिपेल करेगा उसको या अट्रैक्ट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांग इज द मैग्नेटिक फील्ड बी कमिंग आउट हियर, राइट? Hmm. तो बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? Number of coils and the current. हाँ, एक तो डिपेंड करती है एन, इसको कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, Hmm. इसको क्या कहेंगे? Number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स। एक्चुअली इसको हम लिखते हैं स्मॉल, स्मॉल एन लिख देते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स Per meter. पर मीटर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन पता है आपको उसके बारे में? यू आर अवेयर ऑफ दिस साइन?
नहीं। इसका बट आपने बहुत बार यूज किया है तो पता ये प्रोपोर्शन के लिए use- हाँ, इसको प्रोपोर्शनल के लिए कहते हैं। कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एन अगर डबल हो जाएगा तो बी भी डबल हो जाएगा। अगर बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता मान लो, तब क्या होता कि एन डबल कि होगा तो बी 4 टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कि हीट और करंट के साथ। जैसे कि हीट और करंट का रिलेशन था, उसको ऐसा लिखा जाएगा, राइट? हम्म एंड पी इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ऐसा हमारा था। आई बात समझ में? यहां पर क्या है, पी इज प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। बी हम्म इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई, हम्म एंड बी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, एक चीज को कहते हैं म्यू। जैसे वायर की रेजिस्टिविटी होती है, जैसे वायर की एक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है, वायर की अपनी क्वालिटी होती है। कॉपर हम्म की रेजिस्टिविटी कम है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, आयरन की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा है मगर नाइक्रोम से बहुत कम है। तो वो अपनी अपनी जैसे डेंसिटी होती है सब चीजों की। कुछ चीजों की डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी तो शायद थोड़ा आइडिया होगा आपको। हाँ, तो कुछ चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ चीजों की डेंसिटी कम होती है। इसी तरह मैग्नेटिक करेक्टर सब मटेरियल्स का अलग होता है। अलग अलग हो सकता है। तो ये मैग्नेटिक करेक्टर्स को हम कहते हैं म्यू, इसको कहते हैं। म्यू। इसको आप मैग्नेटिक करेक्टर समझ लो अभी, राइट? तो मतलब मैग्नेटिक, अंदर जो कोर है कि अगर वो आयरन का हाँ, जो अलग अंदर होगा। कोर है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? इसको मैग्नेटिक करेक्टर, इसको हम नाम कहते हैं क्या है, इसको हम, इसको म्यू। कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं वैसे, पर आपको ये नाम की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मोटी बात समझ लो कि मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं इसको, राइट? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। आ रही बात समझ में? राइट। हम्म तो ये तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। तो फिर बी का फॉर्मूला है क्या? बी का फॉर्मूला क्या है? सिंपली म्यू एन आई वावे, म्यू एन इंटू आई, राइट? हम्म म्यू इंटू एन। स्मॉल एन इंटू आई। ठीक है? आई बात समझ में? अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर को डबल कर दूं तो बी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। 4 टाइम कैसे हो जाएगी? यहाँ स्क्वायर थोड़ी लिखा है। 2 टाइम्स। हाँ, डबल हो जाएगी। अगर मैं इनको 3 टाइम्स कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स 3 टाइम्स कर दूं सेम लेंथ में, तो बी भी 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स हो जाएगी। करंट को ट्रिपल कर दूं तो ये भी 3 टाइम्स हो बी जाएगी। भी 3 टाइम्स हो जाएगी। ये ठीक बात है। तो अगर मैं एन को भी 3 टाइम्स कर दूं और करंट को भी 3 टाइम्स कर दूं, अब भी कितनी हो जाएगी? 6 टाइम। यू आर बेटर देन दैट। 9 टाइम्स। 9 टाइम। बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू एन आई, राइट? ओह सॉरी, 9 टाइम्स। तो बी न्यू कितनी हो जाएगी? म्यू तो हमने नहीं चेंज किया। हम्म इंटू एन न्यू इंटू आई न्यू। हम्म एन न्यू कितना था? 3 एन। आई न्यू कितना था? 3 आई। 3 एन। तो कितना हो गया? 9 म्यू एन आई। तो फिर बी न्यू बाई बी कितना हो गया? 9। 9 MNI अपॉन MNI। हाँ, इसको म्यू पढ़ते हैं इसको। म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? ऐसा लिखते हैं इसको। और इसको पढ़ते कैसे हैं? म्यू, म्यू, राइट? हम्म इट्स ए symbol of Greek language or Latin language, we can check, right? समझ में आया आपको? यू गॉट सम बेटर आइडिया रिगार्डिंग हाउ दिस थिंग्स चेंज? और अगर इनमें से कोई स्क्वायर हो जाएगा तो बी भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, मगर स्क्वायर की टर्म है नहीं फॉर्मूले में। बस यही फॉर्मूला है। स्क्वायर हो जाएगा मतलब क्या हुआ? डबल हो जाएगा, आप कह रहे हो ना? हम्म नहीं, मैं समझा नहीं बात आपकी। जैसे कि अगर करंट, जैसे आप बोल रहे हो करंट डबल हो जाएगी, करंट ट्रिपल हो जाएगी, तो अगर करंट स्क्वायर हो जाएगी तो स्क्वायर हो बी जाएगी क्या मतलब हुआ? किसी चीज अपने को स्क्वायर हो जाएगा क्या मतलब होता है? उसका क्यों? टू अपने आप का डबल, मतलब कि आई इंटू आई। ऐसे कैसे डबल हो जाएगा? मैं इसमें डाल रहा हूं ना करंट तो। हम्म मैंने 2 एम्पियर डाला,
या 3 एम्पियर डाला या 4 एम्पियर डाला, तो मैं क्या कहूँगा? 50% बढ़ गया। हम्म। इसको कहूँगा 100% हो गया, डबल हो गया। आई बात समझे? मगर स्क्वायर लैंग्वेज हम नहीं यूज करते हैं इस तरीके से। हम्म। ठीक है, डबल ट्रिपल ऐसे ऐसे करेंगे। जो मन में सवाए ना आए ना, बोलना जरूर चाहिए। डोंट बी, ठीक है ना? हाँ, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, वरना फिर ऐसे ही रह जाएगा, डाउट रह जाएंगे मन में। हम्म। ठीक है ना? उसका कोई फायदा नहीं है। नो क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज बैड क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर गुड क्वेश्चन, राइट? या तो यू मस्ट स्पीक आउट, राइट? मस्ट स्पीक आउट। आई बात समझ में? राइट? हम्म। तो अगर मैं कहूँ कि देखो, अब मैंने क्या किया, टर्म्स बहुत पास पास कर दिए इसके कंपैरिजन में, हाँ? हम्म। तो अगर मैं आप पूछूं कि इसमें भी ज्यादा है कि इसमें भी ज्यादा है, वो सेकंड वाले में। तो आप बोलोगे भाई इट डिपेंड्स ऑन करंट ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द कोर मटेरियल ऑल्सो। बट यू विल आंसर माई क्वेश्चन लाइक दिस, इसमें भी ज्यादा होगी प्रोवाइडेड यू हैव नॉट चेंज द करंट एंड यू हैव नॉट चेंज द कोर मटेरियल। विल दैट नॉट बी कंप्लीट आंसर? हम्म। हाँ ना? हाँ, राइट, यू विल से लाइक दिस, ओके, दिस लुक्स लाइक मोर टर्न्स पर मीटर, so this will be make a stronger magnet. However, if you reduce the current, make the current zero, then what will happen? There will not be any field. They will be same. So that will depend on current, right? Also, and the core material हम्म। also, right? म्यू से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जी, मेटेरियल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? हम्म। मैग्नेटिक परमिटिविटी, जैसे अगर हम कहें रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट? हम्म। म्यू ऑफ आयरन अपॉन म्यू ऑफ एयर, आयरन को डालने से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी? या अगर मैं कहूं म्यू ऑफ नियोडिनम, राइट, अपॉन म्यू ऑफ एयर, हाँ, Oh my इससे God. कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, राइट? हम्म। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम्म। राइट? एक बार चेक करें आंसर इसका। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक field produced in a solenoid if Electromagnet. the current is same but the core material core material changes from air to iron, air to neodymium, huh? हम्म। Let's see, रेशियो लिखना तो मैंने एन डाल दिया, या म्यू कोर डिवाइड बाय म्यू एयर, है ना? हम्म। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। ये होता है म्यू का सिंबल। हाँ, ऐसा सिंबल होता है म्यू का। आयरन से कितनी बढ़ गई देखो, 5000 टाइम्स तक बढ़ गई, राइट? अरे बाबा रे। ये इक्वल टू होता है तो ये कर्वी क्यों होता है कुछ में? हाँ, अप्रोक्सीमेटली, नियरली इक्वल, इट्स नॉट इक्वल, इट इज नियरली इक्वल, दिस इज सिंबल फॉर नियरली इक्वल, क्योंकि रेंज दे रखी है ना, हम्म। इसके बीच में कहीं आ सकता है, राइट? तो 5000 टाइम्स भी बढ़ सकता है, नॉर्मल इतना नहीं लेते हैं, 500 टाइम्स ऐसे, 400 टाइम्स ऐसे लेते हैं। इसने कुछ ज्यादा दे दिया, प्योरिटी पर डिपेंड करता है, सॉफ्ट आयरन, मर्द आयरन।
और नियोडिनम में क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा चेंज नहीं हो रहा. Is a hard magnetic material because internal magnetic dipoles are rigidly locked. It अच्छा तो it's not good for electromagnets. It's good for permanent magnets, right? Oh, ऐसा that's भी quite होता है. interesting. देखो, require relative permeability extremely low, almost identical to that of empty space. While neodymium core contributes to its own permanent magnetic field to the environment, its ability to amplify the solenoid's dynamic this is nearly non-existent. Okay, तो ये अपने आप में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे फेल है. हाँ हाँ. इट्स हम्म. ऑलमोस्ट एज मच एज एयर, राइट? ओके. मुझे लगा ऐसा भी होता है. यहाँ देखो, क्वाइट सरप्राइजिंग. नेचर इज क्वाइट सरप्राइजिंग, राइट? नेचर इज क्वाइट बिग. Yeah, that makes sense actually. We can discuss it. I don't think we can discuss it this year. In future, we can discuss it. You know what he's saying. हम्म. Yeah. So the neodymium is used for permanent magnets, but not for electromagnets. For electromagnets, we go for iron or steel or nickel or cobalt. Let's ask. Yeah. Some are hard materials, some are soft materials. So hard materials make good permanent magnets, but they are not so good in temporary magnets, Electromagnets. electromagnets. Yes. Iron soft magnetic material Soft है. material, yes. Iron is called soft. Especially some varieties called soft iron. Interesting word. हम्म. You will think that soft iron means दबाने से sponge की तरह दब जाएगा. It doesn't mean that, right? It is soft in its own language, right? In the magnetic language. It's soft, right? Not the physical sense, right? It is still iron, it's still hard, right? Yeah. Needs to be highly responsive and magnetic dynamic. You want to turn it instantly, reach a massive magnetic strength and turn off completely, you cut the current, right? Iron, steel, nickel, cobalt. Steel is not as soft as iron. हम्म. So steel is used for permanent magnets actually. It is alloy of these things. It introduces structural defects that lock. This gives the steel high retentivity. It is used when a minor permanent magnet effect is acceptable. Right? वहां पर nickel and cobalt both are ferromagnetic, but their relative magnetic permeability are significantly lower than. तो उसमें तो 5000 लिखा था. निकल में कितना है? 100 to 600. और कोबाल्ट में अबाउट 250. समझ में आ गया? तो दे आर रेयरली यूज एज प्योर कोर्स फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज दे सिंपली आर नॉट एज एफिशिएंट एज आयरन इन एम्पलीफाइंग द फील्ड, राइट? इन हम्म. एम्पलीफाइंग द फील्ड. बढ़िया बात है. नियोडिनम तो फेल ही है बिल्कुल. ये तो कुछ बढ़ा ही नहीं रहा है इसको जो है, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है. हम्म. इट्स ए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल. These are not so soft, not so hard, intermediate. And soft iron is the intermediate. Which is the best for electromagnet? Soft iron. Soft iron. It is good for, यहाँ लिखा है ना, हाँ, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसफॉर्मर्स, राइट? उनमें ही काम आएगा ये, उनमें ही काम आएगा, रिलेज में काम आएगा. ओके, लेट्स गो टू दिस थिंग. Go back to what we were doing. We were summarizing the chapter, right? Hmm. Now we know. Yeah, you were summarizing chapter. Okay. तो हमें समझ When में आई बात सारी. हाँ, नेक्स्ट पढ़ो. when a current flows in a wire, some of the electric energy gets converted into heat energy. This is known as the heating effect of electric current. Right. The So some of the heat. energy is stored, Hmm. some of the energy passing, it gets lost as heat energy. Right? I'm saying lost if I don't need it. But if someone needs that heat, then it's good. For example, a geyser or a Hmm. heater or a bulb, it needs that heat. When I say it's a waste, when I'm transferring electricity from the generator
टू द सिटी। jungle to the city. हाँ, एट दैट टाइम जो हीट जनरेट वो क्या कहेगी, मुझे वहां पर हीटर थोड़ी चाहिए। मैं कहूँगा अरे भैया ये तो बिजली वेस्ट हो गई यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो गई, इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। नॉर्मली कितना वेस्ट हो जाता है, यहाँ से अगर 100 जाता है तो यहाँ करीब 90 या 92 या ऐसा पहुंच पाता है। तो 8 to 10% वेस्ट हो जाता है इसमें। एंड दैट टू व्हेन वी स्टेप अप सो मच, वरना तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा स्टेप अप नहीं करेंगे तो। Step ज्यादा क्या, down. यहाँ पर स्टेप अप करेंगे ना, स्टेप अप के कारण हीट कम हो जाती है, हाँ लॉस हाँ। कम हो जाता है, राइट। फिर स्टेप डाउन तो सेफ्टी के लिए करना पड़ता है ना, क्योंकि यूज तो हम इतनी हाई पे नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यूज करने के लिए जिंदा भी तो रहना है ना। तो वी यूज एट लो वोल्टेज, राइट। इवन 220 वोल्ट इज लिटिल रिस्की, जो हम यूज करते हैं, राइट। अमेरिकन यूज 110 वोल्ट। उसमें अगर हाथ भी लग गया तो शॉक लगेगा, आई डोंट थिंक पीपल विल डाई ऑन दैट, राइट। बट देन द लॉसेज विल बी मोर, बिकॉज वोल्टेज जितनी कम है तो करंट ज्यादा हो जाएगा, और करंट का हम्म स्क्वायर ज्यादा आ जाएगा, राइट। बट दे आर ए रिच कंट्री, दे कैन अफोर्ड द लॉसेज, द वैल्यू ऑफ लाइफ इज मच मोर। हाँ, हम्म राइट। तो अमेरिकन यूज 110 वोल्ट, वी यूज 220 वोल्ट, राइट। आगे बढ़े। The heat generated in a current carrying wire depends on the material of the wire, its thickness and length, and the strength and duration of the current flow. या ये क्या फॉर्मूला था, याद है आपको? क्या? फॉर्मूला बताया था इसका। Heat generated का? हाँ, हीट I square. जनरेटेड अभी हमने बताया था, I²R हाँ। मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये तो एक पर सेकेंड है ना, 1 सेकंड में इतनी हीट जनरेट हुई है। अगर मैं 10 सेकंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स। हम्म तो इट हैज टू मल्टीप्लाइड बाय टी, राइट। ठीक है। मगर इसमें आर क्या होता है, रेजिस्टेंस वायर की। रेजिस्टेंस वायर क्या होती है, ये कोई वायर है जी। एक तो इसके मटेरियल पर डिपेंड करेगी, आर डिपेंड्स ऑन Materials. और लेंथ, कितनी लंबी दूर तक लेके जाना है हमने, हम्म जितना दूर तक करंट लेके जाने का उतना हीट जनरेट का ज्यादा मौका मिलेगा, तो हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर ये The मोटा thickness. होगा, हाँ थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे इसको, एरिया, ये वाला एरिया, एरिया ज्यादा होगा तो लॉस कम हो जाएगा। हम्म तो आर हमारी कैसी है, प्रोपोर्शनल टू रो। रो इज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, करेक्टर ऑफ द मटेरियल, जैसे हम्म उसमें म्यू था, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या कहते हैं, Resistivity. रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द, यू नो इट इज द रेजिस्टिव करेक्टर ऑफ दैट मटेरियल, राइट। जैसे हम्म मैग्नेटिक करेक्टर था, रेजिस्टिव करेक्टर है, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एल, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आर की वैल्यू कितनी होती है, रो एल बाई ए। ठीक है। तो अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल डबल हो जाएगी तो लेंथ डबल रेजिस्टेंस हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, और हीट लॉस भी ज्यादा डबल हो हो जाएगा। जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। क्योंकि आर डबल हो जाएगी तो देखो, आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है हीट लॉस का, हम्म इस वाले फॉर्मूले में, हम्म वो भी डबल हो जाएगा। ठीक बात है। टाइम हम्म। अगर डबल कर देंगे तब भी टाइम अगर डबल हो डबल जाएगा, कर दे तो तब भी डबल हो जाएगा। राइट। अच्छा, और अगर एरिया डबल करेंगे तब क्या होगा, तो कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आधी रह जाएगी, राइट, हम्म 1/2। और हीट भी आधी जनरेट होगी फिर, फॉर सेम करंट कह रहे हैं हम, फॉर सेम करंट। ठीक है। हम्म। तो ये वाले बुलेट का थोड़ा डिटेल समझ में आया। हम्म। इट डिपेंड्स A, ऑन द मटेरियल विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, राइट। a simple voltaic cell uses two electrodes and an electrolyte in a liquid form to produce electric current. राइट, The एन electro इलेक्ट्रोलाइट टू प्रोड्यूस। इसमें दिक्कत क्या आती है सिंपल वोल्टेज सेल में, कि इसके अंदर हाइड्रोजन फॉर्म हो जाती है एंड वो या गैस हाइड्रोजन, फॉर्म। इट इट श्राउड्स द, रिएक्ट्स लेयर। या इट कवर्स द इलेक्ट्रोड एंड मेक इट नॉन कंडक्टिंग। गैसेस आर बैड कंडक्टर्स, राइट।
Hmm. तो करंट प्रोड्यूशन बंद हो जाता है, राइट। The electrolyte in a dry cell is in a paste form, making it more practicable and portable. राइट, एंड व्हाट इज दैट पेस्ट कंटेन? Uh, mon say, उसमें एक तो इलेक्ट्रोड के अराउंड क्या चीज थी, एक तो यहाँ पर था कुछ, aluminum. एक तो यहाँ पर था कुछ, और उसके बाद फिर एक और ये पेस्ट था, दो पार्ट थे ना। Hmm. येलो वाली पेस्ट की पूछ रहा है ये। येलो वाले पेस्ट में क्या चीज है? अमोनियम था एक तो। एक तो था अमोनियम क्लोराइड, हाँ। और और एक और क्या एक था? जिंक क्लोराइड, हाँ। नहीं, मोनोऑक्साइड कुछ था। हाँ जी। एक सेकेंड। हाँ, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नहीं नहीं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। हाँ। क्या? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। और बीच वाले में क्या था यहाँ पर? यहाँ पर था मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड कार्बन। हाँ, एक तो उसमें था हमारा मैग्नी पाउडर्ड कार्बन, राइट। हम्म। कार्बन के फ्लेक्स, हम्म। कार्बन फ्लेक्स। ये फ्लेक्स में किस चीज के बने होते हैं? ग्रेफाइट के, एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। और दूसरा क्या था? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। हाँ, MnO2। तो पाउडर्ड कार्बन का क्या रोल था? सिर्फ यहां पर जो बीच में कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसके करंट को MnO2 तक पहुंचाना, MnO2 तक पहुंचाना। पहुंचाना। और MnO2 जब पहुंच जाएगा तो MnO2 के सरफेस पे MnO2 भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा, और NH4Cl भी वहां पर पहुंच जाएगा। तो तीनों चीजें मिलके NH4Cl क्या करेगा? NH4Cl में NH4+ आयन है, हम्म। वो इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या बना देगा ये? NH3 गैस बना देगा, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है उसके कारण H2O बन जाएगा, पानी हम्म। बन जाएगा। तो उसमें क्या बनती है? अमोनिया और पानी। अमोनिया और पानी, तो पानी तो वहां पर चलो अब्जॉर्ब हो जाएगा आसपास कहीं। अमोनिया का अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेगी? प्रेशर क्रिएट करेगी, गैस है वो तो। उसको कौन करता है? जिंक क्लोराइड उसको, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम्म। जिंक क्लोराइड, इट एब्जॉर्ब्स अमोनिया। तो सबका रोल है ना कुछ, ऐसे ही फालतू थोड़ी हम्म। रखा हुआ है इसको। तो जिंक क्लोराइड किस लिए रखा है? कि भाई साहब आपने अमोनिया को एब्जॉर्ब करना है, बनेगी तो, ठीक है। NH4Cl को किस लिए रखा है? कि भाई साहब आपने NH4+ हो आप, तो आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पकड़ लेना। तो कहेगा मैं पकड़ तो लूंगा, मैं NH3 बनाऊंगा, तो बनाओ ना फिर, इसको रखा है ना मैंने ZnCl2 को, वो उसको NH3 को ऑब्जर्व करेगी। और MnO2 का क्या रोल है? MnO2 भी रिएक्शन। हाँ, वो कंपाउंड बनाने में काम आता है। अमोनिया अब्जॉर्ब करने के लिए जो कंपाउंड बनेगा, उसमें शायद उसका काम आता है, राइट। उसमें काम आता है, ठीक है। जस्ट ए क्विक रिकैप सिंस वी डिड ऑल दीज थिंग्स, ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, पर जितना याद रहेगा अच्छी बात है। एटलीस्ट यू नो दैट देयर इज सो मच डिटेलिंग इन एवरीथिंग, राइट। हम्म। या तो हमने थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग की है। जो लोग बैटरी बनाते हैं वो 20 साल से बैटरी बना रहे होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पता होगी क्या होता है, कैसे जाता है, कैसा कैसे करने से इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रैवल करेगा, राइट। वो पूरी जिंदगी उसी में निकाल देते हैं, जरा सी चीज़ में, राइट। या दे बिकम एक्सपर्ट इन दैट। Rechargeable batteries can be charged and used several times. दे कैन बी चार्ज एंड यूज सेवरल टाइम्स। हाउ डू वी रिचार्ज दम, ये बताया था मैंने आपको, कैसे बताया था? ये रिचार्जेबल बैटरी कैसे चार्ज करते हैं इसको? जब डिस्चार्ज हो जाती है तो एक दूसरी बैटरी लेते हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी वोल्ट की, जैसे मान लो 3 वोल्ट है, हम्म। एक 4 वोल्ट की ले ली हमने, है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, हम्म। और इसको उल्टा जोड़ दिया। हाँ, हम्म। अब इसमें करंट उल्टा जाएगा। जब इसमें रिवर्स करंट में जाता है तो ये चार्ज हो जाती है। तो हाउ डू वी चार्ज ए रिचार्जेबल बैटरी? बाय By मेकिंग रिवर्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट मेक्स इट चार्ज। है, उल्टा हो गया, उल्टा जाएगा तो चार्ज होती है वो। इधर जब करंट जा रहा था, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा था, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही थी। और जब करंट पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिल रही है, और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो फिर केमिकल फिर से तैयार हो गया, जब केमिकल एनर्जी फिर से भर गई तो फिर से इलेक्ट्रिकल में बदलने के लिए। आगे बात समझ में? तो दैट इज हाउ द रिचार्जेबल बैटरीज वर्क। work.
या वेरी गुड. न्यू वर्ड्स आपने कुछ सीखे इसके अंदर. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, हीटिंग एलिमेंट. इट इज मेड ऑफ नाइक्रोम यूजुअली. Hmm. Electrolyte is a substance that can conduct electricity when dissolved in water or in a molten state. और in a molten state. Molten state का मतलब क्या होता है? पिघला जब हुआ, जब वो तो हाँ. पिघला हुआ, है ना. पिघाना थोड़ा मुश्किल है ना. सोडियम क्लोराइड, नमक को हम पिघा सकते हैं, पिघा सकते हैं. At high temperature it melts. Then it can be used as electrolyte. Or you just simply dissolve it in water. Again it becomes an electrolyte. I like that, right? Hmm. Okay, good. तो ये हमने तो बुलेट तो कर ली सारी. और क्या इसके अंदर? There would be questions? No, you have not sent questions. I have भेजे हैं मैंने क्वेश्चंस शायद. नहीं, खत्म हो गया. कितने भेजे आपने? क्वेश्चंस नहीं भेजे. क्वेश्चन नहीं भेजे. आप देखो, भेज देना. ठीक है. हम्म. अब नहीं आपको, भेजे. हाँ, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी 10th में आएगी, 8th के बाद. ठीक है, 9th में नहीं आएगी. केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत शायद आए, फिजिक्स में नहीं आएगी. ये तो हमने भी किया है. इसमें शायद क्वेश्चन होंगे. दिस क्वाइट कलरफुल एनसीईआरटी बुक. यस. नहीं, ये वाली बुक ज्यादा कलरफुल है. बट पहले वाली एनसीईआरटी बुक बहुत बोरिंग थी तो उसके या, बेस. नाउ दे रियली मेक द बुक बेटर. यस. ये सब भी मैंने एक्सरसाइज आपने एक और भेजनी है बैटरी की मुझे करके ना अभी. हाँ. नहीं. हाँ. हाँ, 2 भेजी थी मैंने बैटरी की एक्सरसाइज. हाँ, वो मैंने भेजी नहीं है. हाँ, वो भेज, एक्चुअली वो भेजनी है आपको, मतलब वही मैंने कह रहा. कर ली है, मैं भेजने अच्छा, कर भूल लिया गई. वो भी. हाँ. ओके. आधी हो गई है. या वो तो मैंने खुद ही बनाई थी. ये पहली वाली तो मैंने चैट उससे बनवाई थी, जमिनी से. सेकंड वाली भी शायद. सेकंड मैंने खुद बनाई है. नहीं, 3 भेजी थी आपने. बैटरी की 2 भेजी है ना. बैटरी की 2 भेजी, वैसे 3 मैग्नेटिक भेजी. इफेक्ट्स वाली वो भी चैट जीपीटी उससे बनवाई थी, जमिनी से. हाँ. एक बैटरी जो अभी रह गई वो मैंने बनाई थी. उसमें तो जो हमने क्लास में पढ़ा था वो इस बारे में है ना. हम्म. उस जमिनी को क्या पता. शैल बी क्विकली डू एटलीस्ट सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. बोलो. हम्म. बोलो. The solution used in the voltaic cell is called an electrolyte. A current ओके. carrying coil behaves like a magnet. या मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी हो लिखना चाहो आप. Hmm. Choose the correct option. Dry cells are less portable to voltaic cells. False. A coil becomes an electromagnet when an electric current flows through it. True. हम्म. An electromagnet using a single cell attracts more iron paper clips than the same electromagnet with a battery of 2 cells. False. ऑल राइट. An electric current flows through a nichrome wire for a shorter time. The wire becomes warm. क्या? The electric current flows through a nichrome wire for a shorter time. The wire becomes warm. A magnetic compass placed below the wire is deflected. Both option 1 and 2 are correct. Yeah, the wire become warm also because that is the heating effect, Hmm. and the magnetic compass placed below the wire is deflected. That is also correct. Match the items in column A with column B. Voltaic cell uh, generates electricity by chemical reactions. Okay. Electric iron works on the heating effect of electricity current. Okay.
Micron wire works on the best suited for electric heater, All right. and electromagnet is B, works on All right. magnetic. Nichrome wire is commonly used in electric heating devices because it generates more heat for a given Good current. conductor is the wrong. Generates more heat for a Given current. given current. Yes. Because I square R, Hmm. it has a more R, right? Hmm. So it gives more current, Hmm. more heat for the same current. Is cheaper than copper? Not No. really. This is costly, right? This is not correct. Is an insulator of electricity. That means does not pass electricity. That's not correct. If it does not pass electricity, it will not go, it will not become warm. तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुई ना, तो हम चाहते हैं पास तो हो मगर रेजिस्टेंस के साथ पास हो. Hmm. नेक्स्ट. Electric heating devices like an electric heater or a stove are often considered more convenient than a traditional heating method like burning firewood or charcoal. Because it doesn't create much pollution. या ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन Hmm. फॉर द यूजर, है ना. और Hmm. एनी अदर यूज. गिव रीजन. एस भी लिखा है पैकेट में. रीजंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट कंसिडरिंग societal impact. Yeah. For the user and for the neighbors, right? Hmm. Okay. More consider than eating like burning firewood or charcoal. Then, no hassle of storing wood, right? Hmm. No hassle of storing, right? And trees are And, less wasted. and no challenge of, for example, wood becomes sometimes, moist, right? Hmm. Humid. No challenge of moisture in the wood. And less Making trees it are being difficult cut. to making it difficult to burn, right? Less trees being cut. Yeah, less trees being cut. Yeah, that's good. These are good. Yeah. Okay, good. Look at figure 4.4a. If the compass placed near a coil deflects, draw an arrow on तो ये 4.4a. 4.4 वीडियो नेक्स्ट पेज, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सो दैट वी हैव बोथ थिंग्स ऑन द सेम पेज, राइट. Hmm. ओनली देन वी कैन डू. कहाँ पर है फिगर? अच्छा. पीछे है 4.4 वो एक्टिविटी थी. 4.4. अच्छा, पीछे है वो. तो फिर यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, फिर फिगर भी कॉपी कर लेंगे. 4.4 तो काफी पीछे होगी. हम्म. अभी पीछे है, ये 4.5 है. या दिस इज 4.4. ओ, ये तो हम्म. हमने किया था, राइट. 4.4 है. या लेट मी जस्ट रब these things.
There you go. Okay. Look at the figure 4.4a. This is A, right? Hmm. When the compass is near end A. Hmm. पढ़ो. If the compass placed near the coil deflects, draw an arrow on the diagram to show the path of electric current. Um, किस साइड थे वो? ये नॉर्थ. ड्राइव द करंट तो बनाना आसान है, प्लस से बाहर निकलेगा करंट. हाँ, तो आई मेक इट करंट लाइक दिस. आई ये मेक इट लाइक एंटी दिस. क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज है, बी नॉर्थ है. ये एंटी क्लॉकवाइज है. यहाँ से ऐसे जा रहा है. क्योंकि वो वैसा वहां पर नीडल डिफ्लेक्ट राइट साइड हो रही है. यहाँ से अच्छा. ओके, पहले निडल कैसी थी? पहले पहले नीचे की नीडल. तरफ थी शायद, है? हाँ. हाँ, पहले नीचे की तरफ थी. हम्म. तो करंट फिर क्लॉकवाइज होगा इसका मतलब. नहीं, नॉर्थ. जो रेड वाला है वो नॉर्थ होता है ना, तो वो बी की तरफ जा रहा है. नॉर्थ वाला जो है इधर जा रहा है, राइट? हम्म. तो यहाँ पर साउथ होना चाहिए ना. साउथ ही तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा. हाँ, मैंने कहा बी नॉर्थ है. हाँ, बी नॉर्थ है, यू आर राइट. या है ना. हाँ, ओके ओके. तो आपने क्या बोला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. कहाँ से देखने में? प्लस टू माइनस. बी से देखने में या इधर से देखने में? बी से देखने में. यहाँ से देखने में. हाँ. या यहाँ से देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज तो हमारी तरफ आएगा. हम्म. तो यहाँ पर एन बनेगा, बिल्कुल सही है. Explain why the compass needle moves when the current flows. Because it creates a magnetic field which forces the magnet to move in its direction. ओके. Predict what would happen to the deflection if you reverse the battery of the terminals. इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स, तो ये. तो करंट एक्शन विल बिकम अपोजिट. हम्म. देन व्हाट विल हैपन? अगर वह प्लस हो जाएगा तो ये. फिर ये इधर ऐड आ जाएगा. हाँ. ऐसा हो जाएगा. नहीं, सेम ही होगा. सेम ही शायद. होगा. और करेंगे तो क्योंकि यहाँ नॉट बन जाएगा. अगर क्योंकि मैं अभी भी ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, जो बी है वो एंटी क्लॉकवाइज है. एंड जो एस है वो क्लॉकवाइज है. तो अगर हम सेल उल्टा कर देंगे तो क्लॉकवाइज फिर दूर हो जाएगा. नहीं एंड नहीं, तब भी बी नॉर्थ ही होगा. ये हमारा मैग्नेट है, राइट? हम्म. जब करंट हमारा ऐसा जा रहा था, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज. इधर नॉर्थ बन रहा था, इधर साउथ बन रहा था. हम्म. अब अगर करंट को मैं ऐसा कर दूं, पहले ऐसा था, हम्म. अब ऐसा कर दूं उल्टा, तो जो एंटी क्लॉकवाइज था वो क्लॉकवाइज नहीं बन जाएगा? हम्म. तो फिर पहले अगर यहाँ नॉर्थ था यहाँ साउथ था, तो अब क्या हो जाएगा? वहां ये सब एन ए था, ये एन बी था. पहले ए पे साउथ था, बी पे नॉर्थ था, अब क्या हो जाएगा? ए पर नॉर्थ हो जाएगा नॉर्थ. और बी पर साउथ. साउथ हो जाएगा. तो अगर मैं कंपास को अभी भी एक ही पास रखूं, तो क्या होगा? तो अपोजिट क्या होगा? डायरेक्शन. जब तक करंट नहीं था तब तक नीडल कैसी थी, नीचे की तरफ थी, हम्म. और नॉर्थ पोल. अब यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, क्या कहेगा, अरे तुम उधर भागो. हम्म. तो ये ऐसे हो जाएगी. पहले कैसे हुआ था? शुरू में ऐसे थी, साउथ ने बोला अरे नॉर्थ पोल तुम मेरी तरफ आ जाओ, तो ऐसे चला गया था ये ठीक बात है. तो व्हाट इज द शॉर्ट आंसर? प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द डिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स. It would be opposite. The poles हाँ, would become डिफ्लेक्शन opposite. या विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. हम्म. Earlier, the north was moving toward the A, and north will be repelled by A, right? Because the polarity of the magnet reverses by the direction of current. Is it fair? Yes. Okay. So this was seventh. Yeah, this was little this thing. ये क्या है?
Suppose Sumana forget to move the switch to a position. After some time, the iron nail no longer picks up the iron paper clips, but the wire wrapped around the iron nail is still warm. Why did the lifting electromagnet stop lifting the clips? What could be the possible reason? The cell ran out of chemical Yeah, elements. the cell became discharged. Hmm. Cell becomes discharge. और क्या हो सकता है? Maybe the circuit has, but the wire is still hot, right? Still warm. तो मतलब कि अगर वो हटा भी देंगे तो थोड़ी टाइम के लिए तो वो वार्म रहेगा ही. हाँ, थोड़े टाइम तक तो वार्म रहेगी, एकदम से ठंडी थोड़ी हो जाएगी. Hmm. तो probably the current is not passing. Hmm. Probably there is some, Probably the cell became loose and that is the most, yeah, some loose connection somewhere, so the current has stopped flowing. hmm. So some loose connection, Hmm. no current flow. बस यही दो ही रीजन हो सकते हैं. Hmm. और तो क्या रीजन हो सकता है? नहीं. नेक्स्ट. In figure 4.12, figure 4.12, in which case LED will glow when the switch is closed? Uh, A. अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि लेमन जूस इलेक्ट्रोलाइट है ना, हमने वो एक्टिविटी की थी. ओके ओके. तो ये तो प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तो करंट जाएगा ही नहीं इसके अंदर. हम्म. ओ दैट्स वाई. ऑल राइट. इसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर, करंट कहाँ से बाहर आएगा? करंट रिएक्शन बता सकते हो? हाँ, कॉपर वायर पॉजिटिव, आयरन से कॉपर में जाएगा. हाँ, हमने देखा था कि जिंक जो है वो तो इलेक्ट्रॉन देती है. होती है. तो आयरन भी इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर कंपैरिजन में. हम्म. तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, हम्म. है ना? And flow of current will be from copper to हाँ, iron. राइट. तो इसका मतलब ये टर्मिनल कौन सा है? कॉपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल. हम्म. और ये नेगेटिव टर्मिनल है. यहाँ हम्म. से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से करंट बाहर जाएगा यूं. हम्म. यहाँ से करंट आ इधर बाहर जाएगा. जाएगा. आई बात समझ? राइट. हम्म. ओके. एलईडी की एक और खास बात होती है. एलईडी अगर ऐसे है ना, इसी डायरेक्शन में करंट जा सकता है, उल्टी डायरेक्शन में करंट नहीं जा सकता इसके अंदर. समझ में आई बात? हम्म. अगर मैं एलईडी का कनेक्शन उल्टा कर दूं, मान लो मैं इसको एलईडी को ऐसे लगा दूं, तब भी ये तो ग्लो नहीं नहीं करेगा. होगी, क्योंकि करंट इस तरफ जाता ही नहीं इसके अंदर. एलईडी परमिट्स ओनली वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. इंटरेस्टिंग. Yes. It permits only one directional flow of current. It permits only one directional flow of current. हम्म. तो अगर ऐसा बना तो तब भी नहीं करंट जाएगा. पर चलो, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. Neha keeps the coil exactly the same in activity 4.4, but slides the iron nail out, leaving only the coiled wire. Will the coil wire still deflect the compass? Yes, it will, because the wire still produces a magnetic field, but it will be less. It will be very less, right? Hmm. If yes, will the deflection be more or less than more or less than before? Less than before. Yeah, it will be much less than before, right? Hmm. आपने 5,000 देखा times था ना? less. हाँ रे हाँ, 5,000. हाँ, उतना ज्यादा तक देती है मैग्नेटिक वो आयरन, तो उतना इफेक्ट बढ़ा देती है. तो कोई New. चीज इतनी अगर कम हो जाएगी तो क्या ही बचेगा उसके अंदर, नहीं? Hmm. हाँ, बहुत ही कम बचेगी फिर. ऑल राइट. नेक्स्ट. We have 4 coils of similar shape and size made from iron, copper, aluminum, and nichrome. एज शोन इन फिगर 4.13. फिर क्या पूछ रहा है वो? When current is passed through the coils, compass needles placed near the coils will show reflection.
किस में रिफ्लेक्शन आएगा? In all four. रिफ्लेक्शन इन ऑल फोर या फिर सिर्फ नाइक्रोम? क्यों, ऐसा क्यों? इन अगर ऑल इसको फोर हम होगा अगर इसको हम शायद। जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसमें भी करंट जाएगा, हाँ, इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, राइट? इन ऑल सबसे फोर। ज्यादा करंट किसमें जाएगा? नाइक्रोम। क्यों? नाइक्रोन तो गुड बैड कंडक्टर है, रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी। कॉपर। हाँ, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसमें बनेगी? कॉपर। कॉपर में। सबसे कम किसमें बनेगी? एल्यूमिनियम। नाइक्रोम में, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा, हाँ। एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट कॉपर जैसी थोड़ी सी कम है, और आयरन की राइट। उससे कम है रेजिस्टेंस। और आपका। नाइक्रोम की मतलब ज्यादा है, सॉरी। कॉपर की रेजिस्टेंस सबसे कम है, एल्यूमिनियम की कॉपर से थोड़ी सी ज्यादा है, आयरन की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, और नाइक्रोम की बहुत ज्यादा है उससे। हम्म। तो इसमें तो बैटरी तो सेम लगाई है हमने। हम्म। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, मगर फ्लो तो करेगा। तो सभी में मैग्नेट बन जाएगा, राइट? ऐसा नहीं खाली कॉपर का बन सकता है, हम्म। सभी में बन जाएगा। तो आंसर इसमें क्या होने वाला है फिर? व्हेन द करंट पास कंपैरेटिव प्लेस फोर create the इन Coulomb ऑल फोर effect. सर्किट्स। Yeah, in all four circuit, right? It does not depend on the material. Of course, it depends on the material in that sense that some material will permit more current. तो हमने हम्म। क्या देखा? द मोर इज द करंट, मोर इज द फील्ड। देखा था ना हमने? हम्म। तो इसलिए बस उतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी सेम रहने वाला है, राइट? तो चलो, लेट्स स्टॉप हियर। इसको आप थोड़ा देखना। इफ यू वांट टू डिस्कस देन वी कैन डू इट, राइट? ओके, बाय। बाय।